الله يروح البغاو، بسم الله يشيل اللغو، بسم الله شمس الزهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها صلوات اللهم صل على محمد حضرتان محترم بزرگان حضرت جس آیت کریمہ کو سنگا میں سکون کرا دیا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 جس میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ گھر کے پچھلے حصے سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کے بعد گھروں میں داخل ہو جاؤ گھر کے اگلے حصے سے عزیزان ایمان پروردگار یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان اگر گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے تقوی اختیار کریں یعنی اگر انسان کو گھر میں داخل ہونا ہے گھر میں آنا ہے تو وہ بات تقوی ہے تقوی کے ساتھ آئے اور دیکھو گھر میں جب داخل ہونا تو گھر میں
مین دروازے سے یعنی اگلے دروازے سے آنا، پچھلے دروازے سے نہیں آنا، عقب سے نہیں آنا۔ عزیزان ایمان، آج کی مجلس کا جو عنوان گھر اور گھر کا دروازہ، مختصر سی مجلس ہے، بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا۔ گھر اور گھر کا دروازہ یعنی گھر سے مراد کون اور دروازے سے مراد کون؟ گھر سے مراد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دروازے سے مراد حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان ایمان، گھر کے بارے میں تو بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہیں، بے انتہا گفتگو ہوتی ہیں، لیکن گھر کے دروازے کے بارے میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی سرکار سید الشہداء کے بارے میں تو انسان نہ جانے کتنی گفتگو کرتا ہے، کتنے فضائل بیان کرتا ہے، لیکن جب جناب عباس کی نوبت آتی ہے تو انسان اس حد تک ذکر نہیں کر پاتا، فضیلت کو بیان نہیں کر پاتا ہے کہ جتنا ان کا حق ہے۔ اس لیے کہ ہم نے جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو 4 شعبان یا پھر محرم کی 8 تاریخ یا پھر ماتم کے لیے 10 محرم الحرام، بس انہی تاریخوں میں ہم نے منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا میں نے چاہا، بہت غور کیا کہ کس موضوع پہ گفتگو کی جائے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ حیات طیبہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ عزیزان ایمان، دیکھیے جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی جناب عباس نہیں بن گئے، کچھ تو تھا ادھر سے اور ادھر سے، یعنی ددیال والے اور ننیال والے۔ ادھر بھی شجاعت تھی، ادھر بھی شجاعت تھی، ادھر بھی کریمیت تھی، ادھر بھی کریمیت تھی۔ اسی لیے تو عزیزان ایمان ملتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کون، ان کی ماں کون، ان کے والد کون۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا نام بہتر جانتے ہیں، جناب فاطمہ، جن کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ ان کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل، سمامہ بنت سہیل۔ ان کے والد یعنی جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نانا جناب حزام ابن خالد۔ عزیزان ایمان، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایسے بہادر تھے اور ایسے کریم تھے، بہادر ایسے تھے کہ جب جنگ میں آتے تھے تو جنگ میں سامنے والا جب نیزہ چلاتا تھا تو نیزہ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے، لیکن سامنے والے کو معلوم تک نہیں ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ سے نیزہ کب چھینا گیا۔ اور یہ جنگ میں کھوپڑیاں توڑ دیا کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، تبھی تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ ایسا خاندان تلاش کرو، بہادر خاندان۔ صرف بہادر نہیں عزیزان ایمان، بلکہ کریم بھی تھے۔ کتنے کریم تھے؟ آئیے ایک واقعہ کرتا چلوں کہ جناب حزام ابن خالد کتنے کریم تھے، کتنے کریم تھے، کتنے کریم تھے۔ عزیزان ایمان، غور کر رہے ہیں، 3 مرتبہ میں نے لفظ کریم استعمال کیا۔ کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو بات ہے، کوئی تو علت ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو 3 دن تک اس کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے، لیکن آنے والے سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم آئے کس لیے ہو۔ لیکن عزیزان ایمان، ہمارا کیا حال ہے؟ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو 3 دن کیا 3 منٹ نہیں گزرتا ہے، پوچھ بیٹھتے ہیں بھائی خیر تو ہے۔ عزیزان ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مہمان لینے کے لیے آتا ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، مہمان کبھی لینے کے لیے نہیں آتا، مہمان ہمیشہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ کتنے کریم ہیں، 3 دن تک خاطر مدارات کیا کرتے تھے۔ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، یہ ہمیشہ سفر پہ رہا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے بہت۔ ان کا قبیلہ باغ نشیم کہلاتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور شکار کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر آرام کیا تھا۔ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک در سفید ان کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا آ پہنچا۔ عزیزان ایمان، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ابو الفضل عباس
ऐसे ही जनाब अबुल फजल अब्बास नहीं बन गए, कुछ तो था इनकी माँ में, उनके नाना में, उनकी नानी के अंदर। मेरे अजीजों, जनाब हैजा ख्वाब में है। ख्वाब में क्या देखा कि उनके हाथ में एक दूर सफेद चमकता हुआ दूर उनके हाथ में आया। अभी लेकर कुछ सोच रहे थे कि एक मर्तबा क्या देखा कि घोड़सवार उधर से चला आ रहा है। आने के बाद देखा कि जनाब हिजाम के पास हाथों में, जनाब हिजाम के हाथों में वो दूर सफेद है, चमकता हुआ दूर है। आने वाले ने पूछा कि ये दूर तुम्हें कहाँ से मिला? जनाब हिजाम ने कहा कि ये दूर बस मिल गया। कहा अच्छा कितने में खरीदा? कहा मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे ऊपर से अता हो गया है। गौर करें अजीजों, ये मुझे ऊपर से अता हो गया है। कहा अच्छा तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? जनाब हिजाम कहते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इसकी कीमत क्या है। जनाब हिजाम कहते हैं अच्छा तुम ही बता दो कि इसकी कीमत क्या है। आने वाला शख्स कहता है कि इसकी कीमत दिरहमो दीनार में नहीं है। एक मतलब जनाब हिजाम कहते हैं क्या ऐसी भी कोई शय है कि जिसकी कीमत दिरहमो दीनार में ना हो? बहुत तवज्जो मेरे अजीजों, क्या कोई ऐसी भी शय है कि जिसकी कीमत दिरहमो दीनार में ना हो? एक मर्तबा आने वाला शख्स कहता है हाँ, ये इसकी कीमत ये हो सकती है कि जिसके पास ये दूर हो, ये चमकता हुआ दूर हो, शराफतें उसके पास है, करामतें उसके पास है, शुजाअतें उसके पास है, और जो शख्स इससे मुतमस्सिक हो जाए कयामत तक निजात उसके पास है। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मतलब जनाब हिजाम कहते हैं कि क्या तुम इससे तमस्सुक करना चाहते हो? कहा हाँ बेशक। जनाब हिजाम ने दे दिया वो दूर, ख्वाब खत्म हुआ। अब जब ये लौट कर घर पर आए हैं तो उस वक्त जनाब हिजाम की बीवी हामिला थी, यानी जनाब सुमामा बिन्त सुहैल उम्मीद से थी जब घर से गए थे। और जब घर वापस पलट कर आए हैं तो एक मर्तबा अल्लाह ने उनके यहाँ एक बेटी अता की। अजीजान ईमान, जैसे ही ये सुना एक मर्तबा जनाब हिजाम ने वो ख्वाब बयान किया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा था। इसका मतलब पता ये चला कि वो दुर्रे सफेद, वो चमकता हुआ दूर कोई और दूर नहीं था, बल्कि वो जनाब अबुल फजल अब्बास की मां फातिमा थी। एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान ईमान, ये था बाप का ख्वाब। आइए माँ का ख्वाब क्या है? खुद जनाबे अबुल फजल अब्बास की माँ का ख्वाब, ये तो नाना का ख्वाब। तारीख में मिलता है कि एक मर्तबा मौलाए कायनात तशरीफ फरमा होते हैं और अपने भाई अकील को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं भाई अकील, ऐसा खानदान तलाश करो कि जो बहादुर भी हो, करीम भी हो, सब कुछ हो, शुजा भी हो, कि जो मुझे बहादुर बेटा अता करे। अजीजान ईमान गौर करें, यहाँ पे मौलाए कायनात किससे कह रहे हैं? अपने भाई अकील से। क्यों कह रहे हैं? क्या मौलाए कायनात को पता नहीं है? क्या मौलाए कायनात को इल्म नहीं है? आया मौलाए कायनात से बेहतर कौन जान सकता है? लेकिन यहाँ पर मौलाए कायनात ने अपने भाई को बुलाकर अपने भाई से मशवरा करके बता दिया कि दुनिया वालों देखो, जब भी किसी का रिश्ता हो तो पहले बड़ों से मशवरा करना, पहले बड़ों से मशवरा करना। मौलाए कायनात ने कहा भाई कोई ऐसा खानदान बताओ। जनाब अकील ने कहा कि मेरे खानदान में, मेरी नजर में एक खानदान है जो बनी कलाब का खानदान है। कहा अच्छा तो फिर रिश्ता लेकर जाओ। अब यहाँ पे रिश्ता लेकर चले। तारीख कहती है कि दरवाजे पर आए, दक्कुलबाब किया, अंदर से दरवाजा खोला, वही अंदाज मैंने अर्ज किया था कि 3 दिन तक खातिर मदरात करते थे। ऐसे ही 3 दिन तक जनाब अकील की खातिर मदरात किया, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा कि किस लिए आए हो, कोई काम है। लेकिन तारीख में लिखा है कि जब 3 दिन गुजर गए तो एक मर्तबा जनाब अकील से जनाब हिजाम कहते हैं खैर तो है, क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? अजीब अंदाज है मेरे अजीज। 3 दिन तक खातिर मदरात करने के बाद फिर चौथे दिन पूछते हैं कि क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? जनाब अकील कहते हैं कि मैं रिश्ता लेकर आया हूँ आपकी बेटी के लिए। कहा कौन सी बेटी? का आपकी बेटी जनाब फातिमा का। कहा अच्छा किसका रिश्ता लेकर आए हो? कहा मैं रसूल के दामाद अली का रिश्ता लेकर आया हूँ। अजीजान ईमान गौर करें, जब भी कोई रिश्ता लेकर जाता है तो अपने खानदान की बड़ाई बताता है,
फजीलतें बताता है, लेकिन जनाब अकील ने यहाँ पर बयान किया कि मैं रसूल के दामाद अली का रिश्ता लेकर आया। अब जैसे ही सुना कि अली का रिश्ता, फौरन सर को सजदे में रख दिया। सर को सजदे में रखने के बाद एक मर्तबा कहाँ आए, अपनी जौजा के पास। अभी दरवाजे के करीब पहुंचे हैं कि क्या देखा कि माँ बेटी में गुफ्तगू हो रही है। गौर करें मेरे, जो जनाब मैंने कहा था ख्वाब खुद जनाब फातिमा का, गुफ्तगू हो रही है। माँ अपनी माँ से अब बेटी कह रही है कि मादर गिरामी, मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा कि मैं बहुत पुरफजा जगह पे हूँ और मैं अल्लाह की हम्दो सना कर रही हूँ, अल्लाह की हम्दो सना कर रही हूँ कि इसी असना में मेरे गोद में एक चांद का टुकड़ा आके गिरा। गौर करें, एक चांद का टुकड़ा गिरा। अभी मैं उस चांद के टुकड़े को लिए हुए देख रही थी कि इतने मैंने देखा 3 सितारे भी मेरी गोद में आकर गिरे। रिवायत कहती है कि यहाँ पे ये ख्वाब माँ से पहले बयान किया था और दूसरी रिवायत है कि ये अभी इस वक्त बयान किया। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि पहले बयान किया था और इस रिवायत को, इस ख्वाब को सुनने के बाद माँ ने किसी आलिम दीन की तरफ रुजू किया था। आलिम दीन से पूछा था कि मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, तो आलिम दीन ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ एक उम्दा रिश्ता आएगा और उस रिश्ते की वजह से एक ऐसी औलाद रहता होगी। अजीज़ान ईमान, अब पता चला कि जनाब फातिमा ने जो ख्वाब देखा था, वो जो चांद का टुकड़ा आया था, वो चांद का टुकड़ा नहीं था बल्कि कमर बनी हाशिम था। वो 3 सितारे नहीं थे बल्कि वो कमर बनी हाशिम के भाई थे। एक सलवात पढ़ और मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा। अजीजानी, घर में दाखिल हुए, कहा कि अकील आए हैं। कहा किस लिए? कहा हमारी बेटी का रिश्ता लें। कहा किससे? कहा रसूल के दामाद अली का रिश्ता। अब जैसे ही यहाँ पर सुनना था, एक मर्तबा माँ जो थी फातिमा सुमामा बिनते सुहैल, अपने सर को सजदे में रख दिया और रखने के बाद कहा कहाँ अली का रिश्ता और कहाँ हमारा, कहाँ उनका खानदान, कहाँ हमारा खानदान। अजीजान ईमान, रिश्ता तय हो गया। वो वक्त भी आया कि जब जनाब फातिमा उम्मीद से थी, यानी जनाब उम्मुल बनी। तारीख में मिलता है कि जनाब मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। बस मुझे आखिरी वक्त यही सब। जनाब मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। इतने में एक साइल आता है, आने के बाद सवाल करता है। अब मौलाए कायनात के पास कुछ मौजूद नहीं है वहां पे जो साइल को अता कर दे। कंबर को पास बुलाया, कहा कंबर जाओ मेरे घर, फला मकाम पे फला जगह पे एक टोकरी में एक चीज रखी हुई, एक शय रखी हुई है, उसे लेकर आ जाओ। अब कंबर आए, दरवाजे पे दक्कुल बाग किया, 1 मर्तबा किया, 2 मर्तबा दक्कुल बाग किया, 3री मर्तबा दक्कुल बाग करना चाहते हैं। कितने में अंदर से आवाज है जनाब फिजा की। कहा कौन है दरवाजे पे? कंबर ने कहा मैं खादिम अमीरुल मोमिनीन। कहा क्या काम है? कहा कि मौला ने मुझे भेजा है, फला मकाम पे फला टोकरी में एक शय रखी हुई है, उस शय को मुझे दे दीजिए। अब जनाब फिजा अंदर गई। जाने के बाद यहाँ पे कंबल लिखते हैं कि बहुत देर हो गई, बहुत ताखीर हो गई। अब जब ताखीर हो गई तो अब देखा कि जनाब फिजा लेकर आई और वो चीज, वो शय मुझे दी और मैं लेके चलना ही चाहता था कि मैंने पूछ लिया शहजादी। अजीज़ान ईमान, तारीख में यहाँ पे लिखा है कि कंबर जनाब फिजा का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे, बहुत ज्यादा। कहा शहजादी ताखीर क्यों हो गई, आने में देर क्यों हो गई? शहजादी ने कहा कि मैं लेकर आ रही थी कि इतने में शहजादी ज़ैनब ने मुझे बुला लिया और बुलाने के बाद मुझसे कहा है कि कंबर से जाकर कह दीजिए कि उनके यहाँ बेटा हुआ है, बाबा से कहें कि बेटे का नाम रख लें, बेटे की कुनियत आश्कार कर लें और लक़ब को बयान कर दें। अब जनाब कंबर चले यहाँ से, आए मस्जिद नबवी में। कंबर उस शय को मौलाए कायनात के हाथ में दिया। देने के बाद एक कोने में, एक किनारे में खड़े हो गए। अब चाहते हैं कि ये साइल वाला मसला हल हो जाए तो मैं मौलाए कायनात को ये खुशखबरी दूं। अजीज़ान ईमान, साइल का मसला हल हुआ। मौलाए कायनात ने कंबर को देखा,
मुस्कुरा रहे हैं कंबर, मौला कायनात भी मुस्कुराए। एक मरतबा मुस्कुरा कर कहते हैं कंबर क्या लाए हो, बता दो अब। अजीजान ईमान, कंबर बताना चाहते हैं लेकिन कंबर को कुछ तो चाहिए था। एक मरतबा मौला कायनात कहते हैं कंबर मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, अब तो बता दो। अजीजान ईमान, जनाबे कंबर ने कहा मौला आपके यहाँ बेटा हुआ है। शहजादी ने कहा है कि उसका नाम, उसका लकब, उसकी कुन्यत आश्कार कर दे। अब मौला कायनात ने जैसे ही सुना घर में आए। आने के बाद जनाबे अब्बास को लिया, जनाबे अब्बास का नाम अब्बास रखा और कुन्नियत अबुल फजल अब्बास रखी। लकब कमर बनी हाशिम, कमर अशीरा और सक्का रखा। अजीजा ने बस यही सिर्फ मसाला सक्का रखा। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि बाबा आपने मेरे भाई का नाम सक्का क्यों रखा है, भाई का लकब जो रखा है आपने वो सक्का क्यों। एक मर्तबा मौला कायनात अपने सर को झुका लेते हैं, सर को झुका देते हैं। फिर जनाब ज़ैनब पूछते बाबा आपने भाई के अलकाब में से एक अलकाब सक्का क्यों रखा है। मौला कायनात कहते हैं कि मैंने सक्का इसलिए रखा है क्योंकि ये अब्बास करबला के मैदान में प्यासों को पानी पिलाएगा, सबकी प्यास बुझाएगा। हाँ अरबा प्यासा, आज 4 मुहर्रम हराम हो गए। कितना इंतजार था हमें मुहर्रम का कि जल्द से जल्द मुहर्रम आए और हम हुसैन पे दिल खोल के गिरिया कर सकें। अरबाब आज़म मुहर्रम आ भी गया, 4 मुहर्रम हो गए, चंद दिन रह गए हैं कि हमारा इमाम हमसे रुखसत हो जाएगा। तारीख लिखती है करबला के मक्तल में 2 मुहर्रम से यजीदियों के काफिले पे काफिले आ रहे हैं। कभी हुर का काफिला, कभी उमर साद का काफिला, कभी खूली का काफिला। तारीख कहती है कि जब जब काफिला आता था तो जनाब ज़ैनब तड़प जाती थी और यही पूछती थी अब कौन आया है, अब कौन आया है। यही कहा जाता था कि फौज अश्किया के लश्कर आ रहे हैं, फौज अश्किया के लश्कर आ रहे हैं। अरबाब आज़म तसव्वुर करें, जनाब ज़ैनब हैं, एक मर्तबा अपने भाई को बुलाती हैं। बुलाने के बाद अपने भाई से कहती हैं भैया फौज अश्किया आ रही है, उन लोगों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा है। क्या भैया आपका कोई चाहने वाला नहीं है कि जिसको आप बुला सकें। मकातिल ने लिखा है कि मर्तबा मौला हुसैन ने कहा हाँ बहन, एक है जो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा साथी है, जिसे हबीब ने मज़ाहिर कहते हैं। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना तड़प गई, बेचैन हो गई, भैया तो जल्दी से उसे बुलाइए। जनाब मौला हुसैन ने खत लिखा, खत लिखने के बाद कासिद को दिया। अब कासिद ये खत लेकर चला है। अब मक्तल ने लिखा कि जैसे ही कासिद हबीब इब्न मज़ाहिर के दरवाजे पे पहुंचा है तो हबीब इब्न मज़ाहिर उस वक्त खाना तनावुल फरमा रहे थे। दक्कुल बाग किया। अब जैसे ही दक्कुल बाग किया अंदर से आवाज, कहा कौन? कहा कि मैं हुसैन का कासिद हूँ। लो आज़ादारों, जैसे ही हुसैन का नाम सुनना था एक मर्तबा हबीब खड़े हुए, दरवाजा खोला, खत को लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा और रोने लगे। रिवायत कहती है कि खत को पढ़ने के बाद घर में आ गए। लो आज़ादारों, एक मर्तबा ज़ौजे हबीब कहती है कि आखिर खत में क्या लिखा है? कहा खत में लिखा है, मेरे आका ने खत लिखा है, खत में लिखा है कि तुम्हारा आका हुसैन नरगाह आदा में घिरा हुआ है। ए हबीब, अगर तुम अपने आका की मदद करना चाहते हो, अगर तुम अपने बचपन के दोस्त की मदद करना चाहते हो तो जल्द से जल्द करबला पहुंच जाओ। ए आज़ादारों, रिवायत में मिलता है, मक्तल ने लिखा है कि एक जुमला और लिखा था कि ए हबीब, हुसैन के साथ हुसैन की बहन ज़ैनब भी मौजूद है। लो आज़ादारों, एक मर्तबा जनाब हबीब से ज़ौजा कहती है क्या इरादा है? हबीब ने कहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, मैं तो ज़ईफ हो चुका हूँ। आज़ादारों, जैसे ये कहना
पहना था। एक मर्तबा ज़ौजे हबीब ने चादर को अपने सर पे डाला, डालने के बाद बाहर निकलना चाहती है। हबीब ने कहा, ए ज़ौजा कहाँ जाना चाहती हो? कहा मैं हुसैन की नुसरत करना चाहती हूँ, इसलिए कि हुसैन ने इस खत में लिखा है कि हुसैन की बहन ज़ैनब भी मौजूद है, मैं शहजादी की मदद करने जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, अरे मौला पे क्या मुसीबत आ गई है कि ये शहजादियाँ ये मौला की मदद करना चाहती हैं। लोज़ादारों, एक मर्तबा जनाब हबीब ने अपने गुलाम को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि देखो फला मकाम पे मेरा घोड़ा लेकर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। रिवायत कहती है कि गुलाम फला मकाम पे पहुंच गया और थोड़ा ताखीर हो गई। जब ताखीर हो गई तो जनाबे हबीब को आने में, तो वो गुलाम अपने घोड़े से कहता है, ए अस्तिबा वफा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने आका का बहुत वफादार घोड़ा है, लेकिन याद रख अगर आका ना आ सके तो मैं तुझ पे सवार होकर मौला हुसैन की नुसरत करूंगा। अरबाब ऐसा मक्तल ने लिखा कि हबीब ने मज़ाहिर ने गुफ्तगू सुनी, आने के बाद घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद एक मर्तबा गुलाम से कहा, जा मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तारीख कहती है जैसे ये जुमला कहा, एक मर्तबा जनाबे हबीब से कहते हैं, आका जब तक मैं आपके साथ रहा आपने मुझसे काम करवाया, लेकिन अब आप जाना चाहते हैं तो मुझे आजाद कर रहे हैं। आका मैं भी आपके साथ मौला की नुसरत करने चलूंगा। लो आजादारों, मक्तल ने लिखा, हबीब निकले अब करबला की जानिब, इधर हुसैन मुंतजिर हैं कि मेरा बचपन का दोस्त आएगा। एक मर्तबा कूफे की जानिब से गर्द नमूदार हुई, जैसे ही गर्द नमूदार हुई तो मौला हुसैन ने जनाबे अब्बास से कहा, ए भैया अब्बास आगे बढ़ो, ए बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, अरे मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। लो आज़ादारो, हबीब करबला में पहुंचे। अरे जनाबे मौला अब्बास अली अकबर ने हबीब का इस्तकबाल किया, अरबाब आज़ा हबीब का इस्तकबाल किया। एक मर्तबा हबीब अपने बचपन के दोस्त अपने आका के पास पहुंच गए। करबला के मक्तल में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। इसी असना में जनाबे ज़ैनब के कानों से ये बात टकराई, जनाबे पिज़्ज़ा को बुलाया, पिज़्ज़ा अरे खैर तो है। जनाबे पिज़्ज़ा ने जाकर देखा दरे खैमा पे, अरे हबीब आए हैं। आकर जनाबे ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब, ए शहजादी मुबारक हो, आपके भाई का दोस्त आया है। अरबाब आज़ा मक्तल ने लिखा है कि करबला के मक्तल में जनाबे ज़ैनब का एक सलाम, अरे जो हबीब ने मज़ाहिर के लिए है, कहा, ए पिज़्ज़ा अरे जाकर हबीब को मेरा सलाम कहो। लो आज़ादारो, जनाबे पिज़्ज़ा आती है, हबीब को सलाम कहती है। जैसे ही हबीब ने सुना, अरे सर से अमामा फेंका, खाके करबला को अपने सर पे रखा। अल्लाह अल्लाह, आज वो दिन आ गए कि गुलामों को शहजादियां सलाम कर रही है। अजरकुम अल्लाह। रोल आज़ादारो, जितना गिरिया करना है गिरिया कर लीजिए। बस आज़ादारो, मैंने मजलिस को तमाम किया। वो वक्त भी आया कि जनाब हबीब मक्तल में आते हैं। मक्तल में आने के बाद एक मर्तबा सदा दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अरबाब आज़ा शहीद हो गए हबीब। मौला हुसैन हबीब के लाशे पर आए, हबीब का लाशा लेकर आ गए। आखिरी रिवायत, बस मैंने मजलिस को तमाम किया। रिवायत कहती है कि जब ये काफिला 11 मुहर्रम को लेकर चला, 11 मुहर्रम को ये काफिला जब करबला से चला है, 12 मुहर्रम को कूफे में वारिद हुआ है। कूफे में जैसे ही वारिद हुआ, मुनादी ने निदा दी कि अहले हरम आए हैं, लुटा हुआ काफिला आया है। अरबाब आज़ा जब ये खबर पहुंची तो एक बच्चा आता है उस काफिले के पास, और आने के बाद क्या देखता है कि एक घोड़े के गर्दन में एक सर लटका हुआ है। अरबाब आज़ा मक्तल का जुमला है कि वो बच्चा उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहा है। वो घोड़ा पीछे घोड़ा चल रहा है, बच्चा भी पीछे पीछे चल रहा है। अरबाब आज़ा, बस मैंने मजलिस को तमाम किया। एक मर्तबा घोड़सवार ने देखता है कि वो बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। रिवायत कहती है कि रुक कर वहां पे पूछा कि तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। एक मर्तबा उस बच्चे ने कहा, अरे जिसका सर तुम्हारे इस घोड़े की गर्दन में मौजूद है, मैं उसका बेटा हूँ।
اے ارباب ایسا حبیب کا سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں تھا، وہ حبیب کا بیٹا قاسم. ارباب ایسا مقتل نے یہ فکرہ لکھا کہ حبیب کا بیٹا قاسم اس لعین کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تصویر اپنے ذہن میں بنا رہا ہو کہ کل وہ دن آئے گا میں اپنے بابا کا انتقام لوں گا. اے ارباب ایسا میں نے مجلس کو تمام کیا. ارے وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اس منزل پر آیا اور آنے کے بعد اپنے بابا سے قاتل سے بدلہ لیا. میں کہوں گا اے قاسم، اے حبیب کے بیٹے، ارے تم نے اپنے بابا کے صرف سر کو دیکھا اور اس لعین کو دیکھا، اپنے بابا کا انتقام لے لیا. ارے ذرا عابد بیمار سے پوچھئے جس نے کربلا سے کوفہ سے شام، ارے اپنے بابا کے قاتل کو دیکھا ہو، ارے اس سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی. اپنے بابا کا اس طرح سے